سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں اب نرم بستر پر بھی شہری سونا بھول جائیں۔ مختلف کمپنیوں کے میٹرس کی قیمت میں 25% اضافہ ہو گیا۔ 20,000 روپے والا میٹرس 25,000 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ مہنگائی نے شہریوں سے اب نرم بستر بھی چھین لیا۔ مختلف کمپنیوں کے میٹرس کی قیمت میں 25% اضافہ ہو گیا۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ ہر ہفتے نئے نرخ آ رہے ہیں۔ خریداروں نے دکانوں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ موجودہ حکومت میں یہ 2 ماہ میں 25% کا اضافہ ہو چکا ہے، اور جس طرح اب ڈالر جو کل کا ریٹ ہے اس حساب سے ابھی کمپنی کا رابطہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 10% کا مزید ہم قیمتیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جی، اور اس وجہ سے کسٹمر نہ ہونے کے برابر ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ 10,000 روپے والا میٹرس 12,500 روپے جبکہ 20,000 روپے والا میٹرس 25,000 روپے کا ہو چکا ہے۔ پہلے 25,000 میں بھی سیل نہیں ہے، جب 27,500 کا ہو جائے گا تو بالکل ہی گاہک نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے اور لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ اب تو ہمارے پاس لوگ کہتا ہے کہ میٹرس ہمیں 10,000 کا ملے، تو 10,000 کا تو کمپنی ایسا کوئی میٹرس ہی نہیں ہے جو ہم پرچیز کر سکیں، تو اس حساب سے تو بزنس مین بہت پریشان ہے۔ دکاندار نے اندیہ دیا ہے کہ میٹرس چند روز تک 10% مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ کتنے پیوند مزید لگائیں، آخر کب تک بھرم بچائیں، بچوں کو اپنے بھوکا سلائیں۔ مہنگائی کے باعث تعمیراتی کام ٹھپ ہونے سے ملتان کے دہاڑی دار مزدوروں کا چولہا ٹھنڈا ہونے لگا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ حالات کی تلخی کے لگائے گئے زخموں پر مہنگائی اور کام نہ ملنے کا نمک دہاڑی دار مزدوروں کو نڈھال کرنے کے در پہ ہے۔ مزدور کہتے ہیں کئی دن دہاڑی نہیں ملتی، آخر میں خوار اور مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ 12 دن ہو گئے بھجن، دہاڑی نہیں لگی، کاروبار ہے نہیں، اور مکان مالک کرایہ مانگ رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے۔ 6 تاریخ کو اس کو کرایہ نہیں دیا جا رہا، بجلی کا بل آیا بھرا پچھلے مہینے وہ نہیں بھرا، اسی وجہ سے کہ دہاڑی نہیں لگتی، کام کار ہے نہیں۔ 2 ہفتے ہو گئے کام نہیں لگا، گھر دور ہے، وہاں سے آتے ہیں یہاں اڈے پہ کھڑے ہونے کے لیے، یہاں کام نہیں ہوتا۔ اب دہاڑی دیکھ لو کتنی مہنگی ہے، دہاڑی بہت سستی ہے اور مہنگائی زیادہ ہے۔ مزدوروں کا کہنا ہے کہ کرایہ لگا کر آتے ہیں، سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی کام نہیں ملتا۔ گھروں میں بھی تنگ دستی کے باعث تلخ کلامی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ 3 ہفتے ہو گئے ہیں ادھر کھڑے کام نہیں لگتا ہے، گھر سے آتے ہیں پھر واپسی چلے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں لے کے جاتا ہے۔ ادھر روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، کیا وجہ ہے؟ کام کی نہ ہونے کی وجہ ہے۔ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، رشکے والوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں 40 روپے کرایہ ہے، لفٹیں مانگ کر یہاں آتے ہیں، 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں لگتا، یہاں لنگر کھانے ہیں، جاتے جاتے روٹی کھا جاتے ہیں، بچوں کو بھوکا دیکھ کر پھر رونا آتا ہے۔ ایک جانب بڑھتی مہنگائی تو دوسری جانب بے روزگاری نے ملتان کے مزدوروں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے۔ سارا دن کام کا انتظار کرنے کے بعد ملتان کے دہاڑی دار مزدور جب خالی ہاتھ گھر واپس لوٹتے ہیں تو بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھ کر صرف اتنا ہی کہتے ہیں، دہاڑی نہیں ملی، روٹی کہاں سے لاؤں۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ہمراہ میاں معصوم شفیق، ملتان۔ خبر شامل کرو اور آپ کو بتائیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہم۔ پاور سیکٹر کے افسران اور ملازمین کو مفت بجلی نہ دینے کی ہدایت۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کہتے ہیں پاور سیکٹر ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے، ہم اپنی لاگت بھی پوری نہیں کر پاتے۔ 80 لاکھ بجلی صارفین کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ سیکرٹری پاور ڈویژن نے تجویز دے دی کہ مفت یونٹ ختم کر کے ملازمین کو الاؤنس دے دیا جائے۔ پی اے سی نے سیکرٹری پاور ڈویژن کی تجویز تسلیم کر لی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر برہم۔ پاور سیکٹر کے افسران و ملازمین کو مفت بجلی نہ دینے کی ہدایت۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کہتے ہیں پاور سیکٹر ایک جنجال میں پھنسا ہوا ہے۔ بتایا کہ وفاقی محتسب کشمالہ طارق کی چوری شدہ گاڑی راجن پور سے برآمد کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر کی کار 26 اپریل کو وفاقی محتسب کے دفتر اسلام آباد سے چوری ہوئی تھی۔ ملزم طارق محمود اشاری کو راجن پور اور اسلام آباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کے بعد ٹریس کیا۔ ملزم سے چوری شدہ کار برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ملزم وفاقی محتسب کشمالہ طارق کا سابقہ ڈرائیور نکلا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کو نوکری سے نکالے جانے اور سرزنش کا رنج تھا۔ ملزم طارق کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وفاقی محتسب کشمالہ طارق کی چوری شدہ گاڑی راجن پور سے برآمد کر لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر کی کار 26 اپریل کو وفاقی محتسب کے دفتر اسلام آباد سے چوری ہوئی تھی۔ ملزم طارق محمود اشاری کو راجن پور اور اسلام آباد پولیس نے مشترکہ کارروائی کے بعد
ट्रेस किया। मुलजिम से चोरी शुदा कार बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दी गई है। मुलजिम वफाकी मोहतसिब कशमाला तारिक का साबका ड्राइवर निकला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम को नौकरी से निकाले जाने और सरजनिश का रंज था। मुलजिम तारिक के खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब आईजी पंजाब की जानिब से 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। तकर्रुरी के मुंतजिर अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ राजनपुर तैनात। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि आईजी पंजाब की जानिब से 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। तकर्रुरी के मुंतजिर अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ राजनपुर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले आपको अपडेट कर रहे हैं कि तकर्रुरी के मुंतजिर अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ राजनपुर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईजी पंजाब की जानिब से 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। तकर्रुरी के मुंतजिर अहमद मोहिउद्दीन डीपीओ राजनपुर तैनात। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। अब आपको बताएं कि खानेवाल जिला इंतजामिया के तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। पहली बारिश ने पोल खोल दिया। 25 लाख मालियत से ताज़ीनो आराइश किया गया। रेलवे अंडरपास पहली बारिश में टूट फूट गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने 25 लाख मालियत से रेलवे अंडरपास की तज़ीनो आराइश 2 माह कबल करवाई थी। मंसूबे की तकमील पर सरकारी इंजीनियरिंग ओके की रिपोर्ट पर ठेकेदार को रकम अदा कर दी गई, मगर पहली बारिश ने अंडरपास के नाकस मटेरियल का पोल खोल दिया। शहरी हैरान रह गए। 2 माह पहले ये बनाया गया, तो ये आपके सामने ये सूरत हाल है। तो इस पे लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए हैं और जिसके सामने ये खंडात की सूरत में बन रहा है। तो इंतजामिया से उम्मीद है कि इसके बारे में दोबारा आप देखें। अंडरपास पुल के साइड जगह जगह से बैठ गई, बड़े बड़े गड़े पड़ गए, स्ट्रीट लाइट्स टूट गई, 3 लाख के लगाए गए खजूर के दरख्त सूख गए। शहरी कहते हैं कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले जिम्मेदारों को सजा दी जाए। लाखों रुपए की मालिकत से ये पुल बनाया गया, उस पर इसके काम करवाया गया, लेकिन पहली बारिश ने ये सारा चिट्ठा उनका खोल दिया है। बाकी इसकी लाइट का भी इंतजाम किया था, लाइट भी सिर्फ चंद दिन चली है। उसके बाद यहाँ पौधे भी लगाए थे, वो भी पानी लगा नहीं है, वैसे सूख गए हैं। इंतजामिया नजर नहीं आ रही। हम कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत तरक्याती कामों के लिए खतीर रकम जारी करती है, मगर अफसरान और ठेकेदारों ने मिली भगत से कौमी खजाने को लूटा है। रेलवे अंडरपास पर जगह जगह पड़े ये गड्ढे जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। पाकिस्तान में नवा शहर डेरा अड्डा रोड पर क्राउन फ्लेयर का मामला। क्राउन फेलियर की मरम्मत के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। तफसीलात बिलाल नियाजी की इस रिपोर्ट में। शहर औलिया की सड़कों पर गड्ढे पड़ने का सिलसिला रुक न पाया। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर बारिश के बाद गड्ढे पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। नवा शहर चौक से डेरा अड्डा चौक के दरमियान सड़क पर क्राउन फेलियर पड़ने से रोड पर गड्ढा पड़ गया। आर्जी रिलीफ के लिए डिस्पोजल स्टेशन डिवीजन ने पंप ऑपरेशनल कर दिया। हर जगह बंद रहते हैं और फिर बसों वगैरह का भी होता है कि बस के स्टॉप से स्किप होने लग जाते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर दिक्कत आती है जाने वगैरह। दूसरी जानिब क्राउन फेलियर की मरम्मत के लिए पाइप मौके पर पहुंचा दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर सीवरेज साउथ डिवीजन की जानिब से रिपोर्ट एमडी वासा को पेश कर दी गई। हमने जो है ना यहाँ अपना जो है ना इसे अपना जो है कर्टन ऑफ करके अपना जो है ना पाइप्स हमारे आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला आज रात से हम यहाँ काम स्टार्ट कर देंगे। ये मेन होल टू मेन होल हम वाया है कोई 120 से 130 फुट का। एमडी वासा ने मौके पर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया। वासा हुकाम का कहना था कि 24 इंच कतर की बोसीदा सेवेज लाइन की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। खबर शामिल कर आपको बताएं मियांवाली के शहरी सैर व तफरीह से भी महरूम हो गए। शहर का इकलौता पार्क उजाड़ का मंजर पेश करने लगा। ये रिपोर्ट देखें। मियांवाली का इकलौता ड्रीम लैंड फैमिली पार्क उजाड़ मंजर पेश करने लगा। झूले टूट फूट का शिकार हो गए। पौधे पानी न मिलने की वजह से सूख चुके हैं। शहरियों का कहना है कि पार्क में लगी घास जलकर खुश्क हो चुकी है। इसको ताला लगा हुआ है और सब ग्रीन बेल्ट तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। झूले जो भी मकसद है कि बच्चों के मुतालिक यहाँ सैर सयाहत के मुतालिक हैं, खिलौने झूले वगैरह वो ख़त्म हो चुके हैं। और
बल्दिया की कोई तवज्जो नहीं। शहरियों का कहना था कि पार्क पर खर्च हुकूमत के करोड़ों रुपए जाया हो चुके हैं। शहर भर में सैर व तफरीह के लिए दूसरी कोई जगह दस्तयाब नहीं। जिले इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये मियाँ वाली का पहला पार्क है जो बनाया गया था बच्चों को, जिसके अंदर झूले लगाए गए थे, झील थी, और हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ कुछ भी हर चीज सुनसान नजर आती है। पार्क का सालाना ठेका न होने के बायस इसे ताला लगा दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी सैर व तफरीह के हवाले से मुसलसल ज़हनी अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। खानपुर के शहरी इलाका जटकी बस्ती में सड़कें, गली मोहल्ले सीवरेज के पानी में डूब गए। अहले इलाका सरापा एहतिजाज हैं। ये रिपोर्ट देखें। खानपुर के शहरी इलाका जटकी बस्ती की सीवरेज लाइन नाकारा होने से सैकड़ों घरों को गंदे पानी ने घेर लिया। सड़कें, गली मोहल्ले सीवरेज के पानी से भर गए। अहले इलाका सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। सीवरेज के जमा गंदे पानी से इलाका मुकीन मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार में मुब्तला होने लगे। अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि म्युनिसिपल कमेटी अमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत MNA और MPA को बारहा शिकायत की, मगर सीवरेज सिस्टम बहाल ना हो सका। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से पानी खड़ा है। लोग गंदे पानी में से गुजरते हैं, बार बार लोग यानी कि जाते हैं बल्दिया के पास, लेकिन ये कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो भी यहाँ के मुतलका हुकाम है ना यहाँ पे आते हैं ना किसी की बात सुनते हैं। 4-5 साल से खड़ा है सर, जब से ये लाइन बनी है ना चली नहीं है। हमें पता है असगर शाह इधर का सेंट्री इंस्पेक्टर, उसे भी कहते हैं, वो भी हमारी नहीं सुनता। शेख फयाज बट साहब के पास भी गए, वो भी नहीं सुन रहे। चौधरी अरशद साहब यहाँ से गुजर के जाते, वो भी नहीं सुन रहे। घरों में पानी, हम इतने परेशान हैं, हद से भी ज्यादा। हमारे घर का आसपास साथ भी दरवाजे का आगे भी पानी, इतना पानी है बहुत ज्यादा, हमारे को निकलने को रास्ता नहीं मिलता। जो अगर खुदा ना करे कोई फौतगी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो ले जाने के लिए भी रास्ता नहीं हमें है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही न्यूज, खानपुर। यहाँ आपको अपडेट करें कि DG PHA सैयद शफकत रजा की हिदायत पर जिना पार्क में सफाई ग्रैंड ऑपरेशन। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस चौधरी गुलाम नबी और हाफिज नईम अब्बास की ऑपरेशन की निगरानी। पार्क में पौधों की काट छांट और सफाई का काम जारी है। DG PHA ने पार्क में खूबसूरत लैंडस्केपिंग का टास्क दिया है। चौधरी गुलाम नबी का कहना है कि पार्क को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। पौधों को पानी की फराहमी जारी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि DG PHA सैयद शफकत रजा की हिदायत पर जिना पार्क में सफाई ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस चौधरी गुलाम नबी और हाफिज नईम अब्बास की ऑपरेशन में निगरानी। आगे बढ़कर आपको बताएं, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन मोहम्मद उस्मान अनवर की तरफ से फोर्ट मनरो जाने वाली सयाह और आवाम के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कमिश्नर DG खान उस्मान अनवर की हिदायत पर NHA ने खस्ता हाल बैनुल सूबाई शाहराह की मुरम्मत और बहाली हंगामी बुनियादों पर शुरू करा दी है। इसी वाले से मजीद बात करते हैं रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। बिल्कुल अच्छी खबर है बैनुल सूबाई शाहराह क्वेटा रोड पर सफर करने वालों के लिए कि डेरा गाजी खान से फोर्ट मंडू तक जो सड़क थी जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार थी और आए रोज कभी ट्रक का जो है वो एक्सल टूट जाता था और कभी रोड जो है वो घंटों ब्लॉक हो जाती थी और वहां गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर की तरफ से 12 लेटर्स लिखे जाने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस वाले से पाबंद किया गया कि फौरी तौर पर उस सड़क की मेंटेनेंस का काम शुरू करे और उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो मेंटेनेंस के काम का आगाज कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर डेरा गाजी खान। सर, बड़ी वक्त की जरूरत थी क्योंकि वो सड़क बहुत टूट फूट का शिकार थी और काबिल इस्तेमाल नहीं थी, तो अब उस पर काम हो रहा है, तो उस काम की मॉनिटरिंग के हवाले से क्या लाएमल बनाएंगे? देखिए, इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि ये ना सिर्फ कि बलूचिस्तान का मेन रूट है बल्कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है। और जो इसकी कंडीशन थी, जिस तरह आपने इसको बताया कि बहुत बुरी उसमें थी, तो मैंने NHA के साथ खुद बात भी की और उनको मैंने इस चीज़ का बावर भी कराया कि जी कि आप इसको फ़ौरन शुरू करें। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कल उन्होंने हमें लिख के भेज दिया है कि जो स्टील ब्रिज के आगे वाला पोर्शन है वो सारे का सारा दोबारा बन रहा है और जो स्टील ब्रिज के पहले वाला पोर्शन है उसके अंदर वो सारी रिपेयर कर रहे हैं। मैंने PA को और DC जो हैं DG खान, उनके ज़िम्मे मैंने लगाया कि आप अपनी टीमें बनाएं, जहाँ पे NHA को फैसिलिटेशन चाहिए वो दें, किसी किस्म का उनको मसला नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ हम जो इसके अपने बिल्डिंग के कोड्स होते हैं उसके मुताबिक इसकी थर्ड पार्टी भी कराएंगे और हम इस बात को इंश्योर कराएंगे कि जो सड़क अब बने वो बेहतरीन हो और ना सिर्फ ये कि DG खान को इसका फ़ायदा हो, पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो।
जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान को उसका फायदा हो, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेड रूट है जो बलूचिस्तान को मुंसलिक करता है पूरे मुल्क के साथ, और इस पर तिजारत को जारी रखने के हवाले से। बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान के सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम कहते हैं 4 साल अवाम के दरमियान रहा। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन में शिद्दत पसंदी ला रहे हैं। इसी पर बात करते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा। सूबाई हल्का 217 के अंदर ज़िमनी इंतखाब है। जो इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, इलेक्शन मुहिम के अंदर भी तेज़ी देखने में आ रही है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान ने भी इस वक्त हल्के के अंदर अपनी कैंपेन किए हुए हैं। इस वक्त रंगीलपुर में मौजूद से बात करेंगे। सलमान साहब, कैसा चल रहा है इलेक्शन? थकावट भी होगी, और क्या समझते हैं कैंपेन कैसी चल रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी चल रही है। सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और कोई रात के 3 बज जाते हैं। कल तो बल्कि अज़ानें हो गई थी, तो कैंपेन तो ज़ोरों शोर से चल रही है और बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों का। इंशाल्लाह 17 जुलाई को लोग जैसे निकलेंगे, वोट डालेंगे। मैं समझता हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो एज एक्सपेक्टेड इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून इस हल्के से कामयाब होगी इंशाल्लाह। ब्यूरोक्रेसी आपको कितनी हिमायत कर रही है? ब्यूरोक्रेसी क्या हिमायत मेरी कर सकती है? मैं देखें, हम लोगों ने लोगों से वोट लेने हैं और लोगों के पास जाके हमने लोगों से मिन्नत भी करनी है और उनको मनाना भी है अगर कोई नाराज़ है तो। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ मेरा एक रब्ता रहा है। आपके इल्म में 4 साल में लोगों के दरमियान ही रहा हूँ। अदालतों की वजह से मैं ज़्यादा असम्बली नहीं जा सका, तो लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस है लोगों की तरफ। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ख़ास तौर पर सूबाई हल्का 217 के अंदर वो जहां जलसा करने जाते हैं, थोड़ी देर बाद वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच जाते हैं और उनको आपकी जानिब जो है वो राग़िब करने की कोशिश करते हैं, लालच दी जाती है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो एक झूठे इंसान है। मतलब उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। कोई ऐसी बात नहीं, इस चीज़ का सबूत दें कि कोई डीसी किसी के पास गए हैं, कमिश्नर साहब किसी के पास गए हैं, एसी साहब किसी के पास गए हैं, कोई एक सबूत तो दें। लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली 217 सलमान नईम इस वक्त रंगीलपुर में मौजूद है और अपनी कैंपेन के और उनका कहना है कि कैंपेन बेहतर अंदाज में जा रही है और कैंपेन के अंदर वो शिद्दत भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उनके खिलाफ हल्के में नारे लगवा रहे हैं, जिससे शिद्दत पैदा हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट के ऊपर और काम के ऊपर और खिदमत के ऊपर। बहुत शुक्रिया जुनैद, आप हमें तफसीलात से आगाह करें कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में क्विज मुकाबले, ज़ेर तरबियत अफसरान और जवानों की 20 टीमें मद्दे मुकाबल। ये रिपोर्ट देखें। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में ज़ेर तरबियत अफसरान और जवानों के माबैन क्विज मुकाबले हुए, जिसमें 20 टीमों ने हिस्सा लिया। तकसीम इनामात तकरीब में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक मेहमान खसूसी थे। एडिशनल आईजी ने कहा, तारीख के औराक से मुसलमानों और पाकिस्तानियों का ताबनाक माजी झलकता है। माजी से सबक हासिल करके पेशा वराना सलाहियतें उजागर करने में मदद मिलेगी। तारीख हमारे लिए फख्र और इबरत का खजाना है। इल्मी मुकाबले तारीख और इल्म दोस्ती की मिसाल है। आज ये भी हमें मौका देती है ये तकरीब आज की, कि हम देखें कि हम क्या हैं और वो क्या थे। जैसे इकबाल ने फिर इसी पे कहा कि तुझे आवाज़ से अपनी कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सियारा। तकरीब में कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज गौर मुश्ताक भुट्टा, सीटीओ जलील इमरान, एआईजी डिसिप्लिन इमरान शौकत, एसएसपी आरआईबी नईम शाहिद समेत अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का कहना था कि इस्लामी तारीख और पाकिस्तान की तारीख को मुकाबलों में शामिल किया गया। आज के इस क्विज प्रोग्राम का मकसद उन इस्लामी फातिहीन को खिराज तहसीन पेश करना है जिनकी वजह से मुसलमानों ने अजीम फतूहात हासिल की और दुनिया के कोने कोने में इस्लाम फैला। इस क्विज प्रोग्राम का मकसद अपने ज़ेर तरबियत ट्रेनीज को उनकी शख्सियत से आगाह करना है। फाइनल मुकाबले के 3 राउंड्स में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद की टीम ने 70 पॉइंट हासिल करके कामयाबी हासिल की। एडिशनल आईजी ने कामयाब टीम को इनामात और ट्रॉफी दी। एडिशनल आईजी का कहना था कि आइंदा साल बैतबाजी के मुकाबले भी शामिल किए जाएंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। आगे बढ़ोड़ आपको बताएं, मुल्तान में अच्छी कारकर्दगी वाले प्रोसिक्यूटर्स की तहसीन के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रोसिक्यूटर्स की हौसला अफजाई के लिए तकरीब सजाई गई। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राना मोहम्मद आरिफ कमाल नून का तकरीब से खिताब में कहना था कि तारीख में पहली बार प्रोसिक्यूटर्स को तारीफी सर्टिफिकेट देकर इनकी हौसला अफजाई की गई है। प्रोसिक्यूटर्स की कारकर्दगी के हवाले से ऐसी तकरीबात होती रहेंगी। अप्रिसिएशन ये मैं तो पूरे डिपार्टमेंट को कर रहा हूँ और जो ये अप्रिसिएशन है, ये ना समझें कि बाकी जिनको अप्रिसिएशन लेटर नहीं मिले तो वो उनके मैं समझता हूँ कि वो बेहतर, लेकिन कुछ नाम होते हैं जिनको आपने देना होता है और इंशाल्लाह
मैं यही चाहूँगा कि आगे भी ये डिपार्टमेंट इसी तरीके से ये सिस्टम जारी रखेगा तो इंशाअल्लाह जो बाकी हैं उनका नाम आइंदा आएंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मजीद कहना था कि प्रोसिक्यूशन साइलिन को इंसाफ की फराहमी में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। सरकार के केसेस में प्रोसिक्यूशन का काम पुलिस से केस तैयार करवा के अदालत की मामनत करना है। किसी भी सिस्टम में जब तक सजा और जजा का मैकेनिज्म नहीं होगा तो आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। तकरीब में मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और डेरा गाजी खान के 25 से ज्यादा प्रोसिक्यूटर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर तरीफी इसनाद पेश की गई। तकरीब के इंतजामात डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोहम्मद उमर फारूक खान ने संभाले। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच अब्दुल वदूद, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर खानेवाल राना समर अब्बास, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीजी खान मलिक आफ्ताब जफर और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुजफ्फरगढ़ गजनफर अब्बास खोसा समेत प्रोसिक्यूटर्स की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में नौजवान खिलाड़ी और बच्चों की रौनकें। मुल्तान डिवीजन से सिलेक्शन के लिए पुरुमीद बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। जी ऐसे ही है, मुल्तान के शहरी जो है खेलों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं। इस हवाले से हम आज स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेजियम में मौजूद हैं और बात करेंगे यहाँ के खिलाड़ियों की। बैडमिंटन के साथ साथ जो है यहाँ पे टेबल टेनिस भी खेली जा रही है। टेबल टेनिस इस वक्त दिखाएंगे बिलाल, अगर कैमरामैन दिखाएं। यहाँ पे बच्चे, नन्हे बच्चे और उसके साथ साथ लड़कियाँ जो हैं प्रैक्टिस में मशगूल नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी उनके साथ शाना बशाना प्रैक्टिस के लिए आती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। सुबह शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे जिम्नेजियम में प्रैक्टिस की जाती है। उसके साथ साथ खून लहू गरमाने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। बैडमिंटन के साथ ये टेबल टेनिस बड़ा मुशक्क़त जो है, जहनी आजमाइश जो है वो भी इसमें लगती है। हमारे साथ प्लेयर जो है, नन्हे प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा बताइएगा, डेली आते हैं यहाँ पे और कितनी प्रैक्टिस हो रही है, क्या सीख रहे हैं? ये है कि रोज़ाना एक होता है ना प्रैक्टिस करने का, तो हम आते हैं टेबल टेनिस सीखते हैं और फिर मुकाबले होते हैं इधर। तो बंदा, आपको पता है जब चैलेंजेस हो, जब खेल हो, तो फिर बंदा सीखता भी है और साथ इंजॉय भी करता है। इस पे तो शक्रे वाली निगाह चाहिए होती होगी। किस वाली? शक्रे वाली निगाह चाहिए जी होती जी होगी। बिल्कुल। फोकस रहना होता है और कंसिस्टेंसी के साथ खेलना होता है। फोकस रहना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ खेलना पड़ता है। बहुत ही मुशक्क़त वाला काम है। इस पर नज़रें टिका के जो है टेबल टेनिस खेलते हुए इस वक्त खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जिम्नेजियम में, और डेली बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है और अपने मुस्तकबिल के लिए भी काफ़ी पुरुमीद। बहुत शुक्रिया सुहेब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान के संगम थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा शरीका नु आग लग दी जारी है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम थिएटर में, जहाँ पर म्यूज़िकल कॉमेडी ड्रामा शरीका नु आग लग दी का मरकज़ी किरदार इस वक्त हुमैरा खान हमारे साथ मौजूद है। पश्तो फिल्मों के अंदर आपने बड़ा नाम कमाया, फिल्मों के बाद अब स्टेज के ऊपर भी कदम रखा है। मुल्तानियों से कैसी मोहब्बत समेट रही हैं, क्या कहेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुल्तान से मुझे जब भी आई हूँ बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत इज़्ज़त मिली है, और इसीलिए मैं बार बार ड्रामा करने आती हूँ मुल्तान। तो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुल्तान में ड्रामा करके। ये बताएं कि ऑल ओवर पंजाब जो है वो आपने परफॉर्म किया है, मुल्तान के स्टेज को और अपर पंजाब के स्टेज में क्या डिफरेंस जो है वो आप देखती हैं? मुल्तान में माशाल्लाह प्रॉपर काम हो रहा है, सेंसर हो रही है, कमेटी वाले बैठते हैं, बाकी उसको रिसर्च उस पर होती है कि ड्रेसिंग जो है वो सही है, फैमिली के हवाले से है, स्क्रिप्ट सही है या नहीं है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है मुल्तान में, और प्रॉपर ड्रामा होता है जिसे ड्रामा कहते हैं, तो इसलिए मुझे खुद बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छा मज़ा आता है। अगर आज के ड्रामे की बात करते चलें जिसमें आप मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, इस ड्रामे में आपका किरदार क्या है, वो पब्लिक को मैसेज क्या दे रहा है किरदार? इस ड्रामे में बड़ा बेहतरीन मैसेज है फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। जैसे कि कुछ लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया है, तो पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए बहुत बेहतरीन हमारे डायरेक्टर ने इसमें मैसेज रखा है। मैं यही कहूँगी, आएँ आप सब ड्रामा देखें, इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ हुमैरा खान मौजूद थी, जिनके हवाले से ये कहना है कि मुल्तानियों से जो मिलने वाली मोहब्बत है वो नाकाबिले फरामोश है, लेकिन हुकूमत जो है वो आवाम पर भी थोड़ा सा तर्ज खाए और महंगाई को कम करे ताकि लोग जो है वो। बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।